Good evening, everybody. All right. So, बच्चे, we are going to start up with a sample paper. Revision करेंगे sample paper की. Okay. बच्चे, is my voice audible? All right. चलो. So, बच्चे, we'll start up with question number 1. Anil took 3 ml of sodium sulfate solution and added 3 ml of barium chloride solution to it. बच्चे, Na2SO4 plus BaCl2, you will get BaSO4 precipitate. So it would be white precipitate. Okay. So white precipitate was formed. BaSO4, white precipitate. So option B. All right. Next, in refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement of copper metal. So which option will correctly represent substance reduced and reducing agent? So बच्चे, as you can clearly see, silver nitrate to silver and copper to copper nitrate. So बच्चे, as you can judge, which substance is being reduced? Nitrate is being reduced to silver. Okay. तो बच्चे, जो चीज रिड्यूस होगी, जो चीज रिड्यूस हुई है, that will act as oxidizing agent, and substance which is oxidized, it will act as reducing agent. Okay, तो हमें इसमें substance reduced and substance oxidized ही find करना है. तो बच्चे, our correct option would be A. Correct option would be A. Substance reduced is substance reduced is silver nitrate and substance oxidized is copper. So option A. ठीक है? All right. Question number 3. Samples of metals A, B, C, D were taken and added to following solutions one by one. The results obtained are tabulated as follows. तो बच्चे, इसके अंदर वही है, we have 4 unknown metals A, B, C, D and they are added to iron sulfate, copper sulfate, zinc sulfate and silver nitrate. तो बच्चे, what do you have to do? You have to arrange in order of डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी. तो बच्चे, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में आपको इसे अरेंज करना है. तो बच्चे, इफ यू सी क्लियरली, मेटल डी, इट शोज नो रिएक्शन विद आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट. तो बच्चे, सबसे कम रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है? लीस्ट रिएक्टिव, इट इज डी. तो डी आपके पास यहां है और यहां है. ऑलराइट. So ये और ये तो एलिमिनेट हो गया. Now you have to pick which is the most reactive. If I clearly see metal C क्या कर रहा है? It is showing metal B is showing reaction with iron. Okay. Metal B is showing reaction with iron sulfate. That means बच्चे, ये सबसे reactive है, most. ठीक है. तो I can pick D option. बताइए. BaCd.
3B और 3D, क्या पिक करें? व्हाट शुड वी डू? बी ने क्या किया है बच्चे, आयरन को भी डिस्प्लेस कर दिया है, MgAlZnFe। ओके, जिंक के साथ रिएक्शन नहीं है, कॉपर के साथ है, नॉट शोइंग। व्हाट शुड वी डू? Why can't it be A? Anirudh, you are saying कि A ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? बच्चे पिक द लीस्ट रिएक्टिव फर्स्ट, लीस्ट रिएक्टिव। बच्चे देखो D is not reacting with iron sulfate, no reaction with copper sulfate, no reaction with zinc sulfate, no reaction with even silver nitrate। सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी रिएक्शन नहीं है डी का, तो बच्चे डी इज लीस्ट रिएक्टिव, डी इज लीस्ट रिएक्टिव। ओके, तो उसके बाद आप देखिए कि जिंक और आयरन, बच्चे जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, एंड मेटल बी इज रिएक्टिंग विद आयरन, जिंक के साथ उसका रिएक्शन ही नहीं है, तो मतलब ये आयरन को तो डिस्प्लेस कर पा रहा है। ओके, तो बी इज मोस्ट रिएक्टिव, तो हमारे पास ये ऑप्शन है BACD, तो विल पिक ऑप्शन डी। ऑलराइट, ओके, BACD। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे यू हैव अ मेटल, अनेशा व्हाट डू वी मीन बाय डैश? डैश का मतलब है कि इसके अंदर हमने उसको टेस्ट नहीं किया, पर बच्चे यहां देखो मेटल बी ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया और मेटल बी का जिंक के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, तो यही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, बी वुड बी मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, metal mixed with water, it is giving us metal oxide plus gas। तो बच्चे आपको इसमें देखना है वो मेटल्स जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल प्लस स्टीम, क्योंकि उनमें ही मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो बच्चे वो कौन से हैं? वन इज एल्यूमिनियम, वन इज आयरन, कॉपर नो रिएक्शन, कैल्शियम। बच्चे रिएक्शन होगा वो बॉइलिंग वाटर के साथ भी कर सकता है और उसमें हाइड्रोक्साइड बनेगी, इट विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड। ओके बच्चे, जस्ट अ मोमेंट, होल्ड ऑन। ऑलराइट, तो बच्चे अगर आप इसके अंदर देखो, अगर आप इसके अंदर देखो तो इसमें क्या आएगा? एल्यूमिनियम प्लस आयरन। ओके, तो ये दो करेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, तो बच्चे विल पिक 1 and 2, 1 and 2। ओके, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, it can happen only with steam। okay, so aluminium plus iron, तो बचे 1 and 2 would be correct option। ठीक, next question number 5, which of the following correctly represents a balanced chemical equation? all right, magnesium plus nitric acid HNO3। ओके, तो बच्चे इसमें आपको करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन निकालनी है, इट वुड बी मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस वाटर, तो एक्वा सॉल्ट बनेगा। चेक दी बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन को चेक करिए। ओके, बी और सी, पहले तो देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन का है, 2mg 2mg O 3268 326 बच्चे आई थिंक दिस वुड बी रॉन्ग,
3267 3267 बचे आई थिंक बी इज द करेक्ट ऑप्शन. एक बार चेक करिए. बी ऑप्शन. बी इज correctly balanced. B is correct. Magnesium oxide plus 2HNO3, magnesium nitrate plus water. All right. Question number 6. Graph has shown 3 pH curves A, B, C. बच्चे which correctly represents addition of. तो बच्चे pH should fall below 7. तो बच्चे it would be B. It would be B. This portion. pH should fall below 7. All right. Acidic solutions बचे pH should fall below 7. Basic solution pH would rise above 7. Neutral 7. All right. Question number 7. In reaction of ammonia with oxygen, NH3 plus O2 gives me NO plus water. तो बच्चे which substance is oxidized? कौन सा substance oxidize होगा? Ammonia is oxidized. What say? And oxygen is reduced. Okay. Chalo. So ammonia is oxidized and oxidizing agent is O2. We'll pick option A. Substance and oxidizing agent is oxygen, O2. A. All right, 7A. Question number 8. Chemical reaction between copper oxide and hydrogen can be classified as. But if you have reaction between copper oxide plus hydrogen, it will form copper plus H2O. बच्चे आप इसको किस कैटेगरी का रिएक्शन कह सकते हो? It will fall under category of redox reaction. It will fall under category of redox. Copper oxide plus hydrogen, it will give me copper plus water. ठीक है बच्चे? Clear everybody? Is it clear? चलो, great. आगे चलते हैं. बच्चे you can also say it is a displacement reaction. Yes, क्योंकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दिया. You can call it a displacement reaction also. That वो भी हो सकता है. All right. Question number 9. Which of the given options correctly represent the parent acid and base of potassium nitrate? बच्चे पोटेशियम नाइट्रेट का पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस. तो बच्चे पोटेशियम से बनेगा KOH एंड नाइट्रेट से बनेगा HNO3. सो बच्चे पेरेंट बेस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑप्शन सी. ठीक है, 9C. All right. Question number 10. Why is it important? Why is it important to keep the food items in a refrigerator? वह फूड आइटम्स को एक रेफ्रिजरेटर में रखना क्यों इजी? टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रैंसिडिटी. रेफ्रिजरेटर में हम क्यों खाने को रखते हैं? ताकि हम उन्हें रैंसिडिटी से बचा सके. ठीक है, हमें वायरसेस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लग सकता है, पर बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन ये है, रैंसिडिटी. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 11. Carefully study the diagram of human heart with labels 1 to 4. Select the option which gives correct identification and main function or characteristic. Bache, if I carefully see, this one is superior vena cava. Superior vena cava बच्चे जो ऊपर से blood लेके आती है. This second one is inferior. This carries blood from lower parts of the body. This is 4. This is taking blood outside. So this is aorta. This is pulmonary artery and this is pulmonary vein. और बच्चे ये पोर्शन क्या है? This is walls of heart.
ओके तो बच्चे इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दे आर ऑल्सो नोन एज वॉल्स और डिवाइड हार्ट इनटू 4 चेंबर्स। ओके तो बच्चे देखो, सुपीरियर वेना कावा ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स, दिस इज रॉन्ग। सुपीरियर वेना कावा ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम upper body parts. B is also incorrect. Inferior vena cava brings deoxygenated blood from upper parts, this should be lower. C, septum divides left and right side of the heart, but C is correct. C is correct option. Septum divides left and right side of the heart. 4, aorta carries deoxygenated blood, बच्चे aorta always carries oxygenated blood, so fourth option D is also wrong. So correct option is C. बच्चे what is septum? Septums are walls of heart. Okay चलो, all right, let's move on to next question. A twig of plant is kept inside a flask as shown in the diagram. It was kept in the aim of experiment. But what is the aim of this experiment? This is to prove that CO2 is necessary for photosynthesis. देखो KOH यूज हुआ है, alright, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? To prove that CO2 is necessary for photosynthesis. Alright, it is to prove that CO2 is necessary for photosynthesis. Alright, CO2 is necessary for photosynthesis, KOH is used. So we'll pick option B. All right. And bacha, what is the precaution in this experiment? KOH, it has to be freshly prepared. KOH, it has to be freshly prepared. All right, ये precaution इसमें हम use करते हैं. All right, question number 13. Choose the correct statement that describes arteries. बच्चे आर्टरीज के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? डिस्क्रिप्शन में हमें देखना है. दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स एंड ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर. दे कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट. बच्चे दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, नॉट टुवर्ड्स द हार्ट. दे हैव थिन वॉल्स, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ब्लड फ्लो pressure, this is also wrong. They always carry blood under high pressure. तो इसका मतलब बच्चे डी ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए. They have thick elastic walls without valves, blood flows under very high pressure, and they carry blood away from heart to different parts of the body. तो बच्चे this is the correct identification of arteries. They have thick elastic walls, valves are absent in them, they carry blood under very high pressure, and they will always the heart to different parts of the body. So correct option is D option. Question number 14. Herbivores have longer small intestine. Bacha, this is directly from your NCERT book. Herbivores have longer small intestines because they need to digest cellulose. Okay, correct. आप में से काफी सारे बच्चों ने इसका आंसर दे दिया है. This is directly from your NCERT book. They require longer period of time to digest cellulose. क्योंकि बच्चे cellulose को digest करने में बहुत time लगता है, so they require longer small intestines. चलो, question number 15. Identify the correct label. बच्चे this is showing stomata. बच्चे if I clearly see one is guard cells. ठीक है ना, गार्ड सेल्स हैं. दिस इज स्टोमा एंड दिस इज क्लोरोप्लास्ट. ऑलराइट, सो गार्ड सेल्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ वाटर. बच्चे गार्ड सेल्स दे रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, सो ए इज रॉन्ग. दे रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग. ओपनिंग एंड क्लोजिंग. So chloroplast is site for photosynthesis. But just second part is
सेकेंड पार्ट इज स्टोमा ओपनिंग, तो ये गलत है. स्टोमेटल पोर पार्टिसिपेट्स इन gaseous exchange during photosynthesis, बच्चे C is correct. D3 epidermal cells control opening and closing, बच्चे this is wrong, that is regulated by guard cells. तो बच्चे will pick option C, stomatal pore. Number 2 is stomatal pore or stoma, and it participates in gaseous exchange during photo. तो बच्चे will pick option C. All right. Question number 16. बच्चे this experiment it is showing that CO2 is given out during respiration. तो बच्चे इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप में अगर हम ध्यान से देखें, we have germinating seeds. And बच्चे ये जो germinating seeds हैं, they will do respiration and they will release CO2 gas. This CO2 gas is absorbed by KOH solution. और बच्चे जब KOH solution CO2 absorb करेगा, respiration में ऑक्सीजन अंदर यूज होगी, तो बच्चे इससे क्या होगा, this will create a vacuum here. वैक्यूम बनेगा जिससे पानी ऊपर जाएगा पाइप में, फ्लास्क के अंदर वैक्यूम बनेगा जो है बच्चे वो राइज करेगा. ऑलराइट, तो बच्चे हमें इसमें क्या ऑप्शन पिक करना है. कार्बन डाइऑक्साइड विल बी given out by germinating seeds and this will be absorbed by KOH. और उसकी वजह से बच्चे क्या होगा, as carbon dioxide is absorbed by KOH created inside the flask, vacuum would be created inside the flask. यहां वैक्यूम क्रिएट होगा जिसकी वजह से आपका पानी राइज करेगा ट्यूब में. सो 16th बी बच्चे ये आपके लाइफ प्रोसेसेस की एक्टिविटी है, आपने प्रैक्टिकल्स में भी लिखा होगा. अनिरुद्ध, एपिडर्मिस इज एक्चुअली अ टर्म दैट वी यूज फॉर आउटर मोस्ट कवरिंग, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी. ठीक है, ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 17. अ प्रिज्म एबीसी विद बेस. ओके, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये बहुत सारी एनसीईआरटी की बुक्स सॉरी सैंपल पेपर्स में भी रिपीट. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आफ्टर डिस्पर्जन द थर्ड कलर फ्रॉम टॉप corresponds to color of the mango. तो बच्चे color of the mango is yellow and we need it from third from the top. तो बच्चे आप कौन सी ओरिएंटेशन पिक करोगे, 1 और 2 बताइए. we need yellow, third from the top. A. बच्चे ध्यान से सोचो. नितिन, which one, 1 or 2 or B? All right. अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, VIBGYOR. All right, Nitin is correct. Nitin correct है. We need third color from top to be color of mango. All right, Nitin, you are absolutely right. We'll pick option A, not B. Option A. बच्चे B में तो invert हो जाएगा, तो yellow नीचे आ जाएगा. Yellow will come down. We need third color from top. So we'll pick 17A. Is it clear? Third color from top. All right. Okay. Question number 18. Consider a light ray traveling from medium 1 to medium 2 to medium 3 of refractive indices 1, 1.23 and 2.12. बच्चे आपके पास ऐसे हमने मीडियम्स है, एक के बाद एक अरेंज्ड. मीडियम 1 से मीडियम 2, मीडियम 2 से मीडियम 3 and you can clearly see refractive index बढ़ता जा रहा है. Arrange the speed of light through them in decreasing order. तो बच्चे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उसमें सबसे कम स्पीड होगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है उसमें स्पीड सबसे ज्यादा होगी. सो वी हैव टू अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो बच्चे
1 में सबसे ज्यादा, 3 में सबसे कम. So we will pick option A. Speed of light in medium 1 is greater than in speed of light in medium 2, greater than speed of light in medium 3. All right. 18th A. बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी उतनी ज्यादा, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा स्पीड. दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. कैसे लिख सकते हैं हम इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 19. An object is placed at some distance u from convex lens of focal length f. If image is obtained as virtual, erect and magnified, then you have to choose the correct relation of image distance v with u and f in magnitude. बच्चे आपको convex lens में real और inverted images मिलती हैं, but एक ही केस है when you get virtual image. If object is kept between f and o, तो बच्चे in that scenario what would be u? u क्या होगा? u should be less. u should be less than v and v should be less than f, or u should be less than f and f should be less than v. Okay, तो बच्चे I think we should pick option D. D is the most appropriate. Object distance would be less than focal length and focal length would be less than image distance. D option सबसे appropriate option D बन रहा है. Object distance तो बच्चे focal length से कम हो ही जाएगा और convex lens में जो आपकी image है वो focal length के आगे ही बनेगी. तो U is in U less than F, F less than V. D option. All right. Question number 20. A ray of light passes through glass prism as shown. The ray splits into 7 colors due to. बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डिस्पर्जन. इसका करेक्ट ऑप्शन है डिस्पर्जन. As light passes through glass prism, it will split into 7 colors due to dispersion. Question number 21. In an experiment to trace path of a ray of light passing through a glass prism, all right, for a different value of angle of incidence, it is observed that emergent ray is. बच्चे अगर हम ये देखें, all right, okay, what will you conclude? बताइए, what will you conclude? Emergent ray is parallel to incident ray? No. It is parallel to refracted ray? No. Is perpendicular to incident ray? No. बच्चे it bends at angle to the direction of incident ray? D option. बच्चे यहाँ आपका angle of deviation है तो ये incident ray से एक particular angle पे bend हो जाएगी, तो we'll pick option D. 21D. Is it clear everybody? पैरेलल नहीं होगी बच्चे, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे बेंड हो जाएगी इंसिडेंट रे से आफ्टर इट पासेस थ्रू द सेकंड सरफेस. ऑल राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 22. अ स्टूडेंट यूज्ड अ डिवाइस X to obtain a focus of image of well illuminated distant building on a screen S. Name the device used and its focal length. बच्चे this is a real image, oh sorry, not real image. This is a convex lens. Okay, convex lens है, focal length 8. Okay, so this is convex lens of focal length 8 centimeter. We'll pick option C. Pick option C. 22C. It's easy question. बच्चे ये क्वेश्चन बहुत सैंपल पेपर्स में आ रहा है. डिस्टेंट बिल्डिंग या डिस्टेंट ट्री का आपको इमेज के साथ फोकल लेंथ जज करना है. तो 22C, this is directly from NCERT activity. चलो क्वेश्चन नंबर 23. The total angle between incident ray and refracted ray sorry will be. तो बच्चे अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो नॉर्मल रे ऐसे बनेगी. All right, तो this is 35, so this would be 55 degree. Angle of incidence is 55 degree. So that means बच्चे आपको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल निकालना है.
तो 55 डिग्री का डबल। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी, 110, 110। बच्चे आपको हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है, उधर से एंगल मेजर होगा। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन 35। ये नहीं सोचना कि 35 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दैट वुड बी रॉन्ग। You will draw a normal to reflecting surface at point of incidence and judge the angle. Is it clear everybody? Clear? All right, chalo आगे। Question number 24. Light rays A and B fall on optical component X and they come out as CD. बच्चे ये डाइवर्ज हो रही हैं, तो ऑप्टिकल कंपोनेंट इज लेंस। तो लेंस कौन सा होगा? कॉनकेव लेंस, क्योंकि बच्चे यहां लाइट रे देखिए ऐसे बाहर डाइवर्ज हो रही है, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू अ कॉनकेव लेंस। 24A। All right, question number 25. Following reaction is used for preparation of oxygen gas in laboratory. बच्चे this is showing thermal decomposition of potassium chlorate. तो बच्चे it is decomposition and it is endothermic, क्योंकि heat absorb हो रही है। we'll pick option A. It is decomposition reaction and endothermic. A. Chalo, next. Question number 26. A boy was stung by a bee. Her mother washed the affected area with soap and he got some relief. Which of the following statements are correct regarding this incident? Okay, bache, soap is basic in nature and acid is present in bee sting. तो बचे 2 and 3, C option. Easy question है बचे, applications of pH from daily life, उसमें से ही ये question है। All right, question number 27. Zinc pieces were placed in each of the 4 test tubes containing different salt solutions as shown. बच्चे जिंक को हमने अलग अलग सॉल्यूशंस में डाला है, तो बच्चे यहां देखिए, यहां तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा क्योंकि जिंक इन जिंक सल्फेट, और यहां भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। बच्चे एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, है ना? तो बचा क्या? 3 and 4। तो बच्चे 3 and 4 में रिएक्शन होगा। What is the reason? Zinc is more reactive than iron and copper. All right. But this is based on metal reactivity and single displacements reactions. So 27A. All right. Question number 28. Reaction between X and Y forms compound Z. X loses electron and Y gains electron. तो बच्चे हम यहाँ आयनिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ हम आयनिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। Which of the following properties is not shown by Z? बच्चे Z आयनिक कंपाउंड है, not shown। तो बच्चे it has high melting point, this is correct। तो बच्चे लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता आयनिक कंपाउंड का, तो B is wrong। It conducts electricity in molten state, this is correct। Occurs as solid, this is correct। तो बच्चे will pick option B, आपको not shown। तो बच्चे आयनिक कंपाउंड्स have very high melting points, तो 28B is incorrect। तो we'll pick option B। All right, question number 29. Which of the following step is or are most appropriate for evolution of hydrogen gas and its identification? बच्चे इसमें दिया है dilute NaOH plus zinc, तो रिएक्शन तो होगा, पर बच्चे आपको सेटअप करेक्ट चूज करना है। तो बच्चे I'll pick option D, only 2। सेटअप को ध्यान से देखिए, यहां देखो पाइप को पूरा नीचे ले आए हैं, दिस इज रॉन्ग। यहां देखो यहां तक है, यहां से जो गैस बनेगी वो बाहर आ सकती है, तो बच्चे दिस सेटअप इज ओनली करेक्ट, रेस्ट ऑफ द सेटअप्स आर रॉन्ग। ठीक है, सो विल पिक 29D।
ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। बताइए, 30 तो बहुत आसान है, ये आप मुझे बताइए इसका आंसर। One of the constituents of baking powder is sodium hydrogen carbonate. The other constituent is, बच्चे बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? We add an edible salt. Very good. Tartaric acid और citric acid is added. तो यहाँ बच्चे tartaric acid दिया है, will pick 30B. Very good. Absolutely right. चलो assertion reason. Question number 31. Antacids are used to neutralize effect of extra acid produced during indigestion. This is true. Basic solutions have pH value more than 7. This is also true. But is it the correct explanation? Do you think? Yes or no? बच्चे देखो यहाँ क्या बोला है, antacids neutralize the effect of extra acid. That means they are basic. pH value of more than 7. So बच्चे रीजन इज करेक्ट। पर बच्चे क्या ये इसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है? व्हाट डू यू थिंक? तो वे पिक ऑप्शन बी और ए, बताइए। ऑल राइट, Anirudh is saying A, Akriti and other students are saying B. All right बच्चे, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन ये हो सकता है कि हमें लग सकता है कि ये एक्सप्लेनेशन नहीं, एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो बेसिक है। Alright, antacids are basic solutions and they have pH value of more than 7, so they can neutralize the excess acid. तो बच्चे I think I will consider it as A. मैं तो इसको A मानूंगा। Another very important क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसको एक बार छोड़ सकते हैं। जैसे हमें इसमें A और B के बीच में डाउट हो रहा है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज उसको छोड़ दीजिए। मुझे तो इसका आंसर A लग रहा है, बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि इसका B भी हो सकता है। तो आई विल पिक A फॉर दिस। पर मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और जहां आपको लगता है कि एक से ज्यादा चॉइस हो सकती है, तो प्लीज लीव इट। अनिरुद्ध, वाई B कैन बी अ, यहां ये नहीं लिखा एंटासिड्स आर बेसिक सॉल्यूशंस। Antacids are basic solutions and they have pH value more than 7. डायरेक्ट तो है, एग्रीड, पर वही बात है ना कि इसलिए बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है बी हो जाए। आई एग्री ए पिक करना है इसका आंसर। पर अगर आपको थोड़ा सा भी चांस लगता है कि एक और ऑप्शन हो सकता है तो छोड़ सकते हैं, we can leave. Assertion reasons can be very tricky at times. Or we know antacids are basic solutions. Agreed. बस इसमें थोड़ा सा ये है कि इसमें ये नहीं लिखा antacids are basic and they have pH value more than 7. ये नहीं लिखा, बस यही उसमें थोड़ा सा डाउट है और कुछ नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 32। सोडियम क्लोराइड is used for manufacturing of many chemicals like bleaching powder, sodium hydroxide, etc. Assertion is true. Main source of common salt is seawater. This is also true. पर बच्चे, is it explaining this? No. तो we'll pick option B now. अब दोनों separate सही statements हैं, तो we'll pick option B, 32B. All right. Question number 33. Egestion is removal of nitrogenous waste products from the body. But your assertion here is false. This is semi-solid feces, or you can say feces. Reason: excretion involves filtering of blood in nephrons
and eliminates toxic waste. तो बच्चे reason is true, assertion is false. We'll pick option D. Question number 34. Sun appears reddish in the morning. It will not be observed on moon. Assertion is true. Reason, it is because moon does not have atmosphere, therefore light will not be scattered. Reason is also true. और ये इसका correct explanation है A. 34A. All right. Chalo, let's move on. Question number 35. There are 4 metals K, L, M, and N. Identify them by using hints given below. K forms basic oxide. तो बच्चे K is metal. L forms amphoteric oxide. तो बच्चे ये भी metal है. Oxide of M dissolved in water to form alkali. Okay, तो बच्चे alkali to be a metal. It can be sodium, potassium. All right. तो बच्चे N does not react at all with water. और N का तो कोई reaction नहीं है. तो बच्चे it can be copper, silver, gold, etc. अब बच्चे decide करिए. All right. मुझे M तो बच्चे कोई मेटल चाहिए जैसे सोडियम या पोटेशियम. All right. तो बच्चे यहां देखिए L is aluminium, M is sodium, N is iron. बच्चे does not react. तो A गलत हो गया. C is also wrong. B देखो K is Fe, L is Na. बच्चे Na is not amphoteric oxide. B is also wrong. तो D बचा अब आपके पास. K forms basic oxide CuO. L is zinc, amphoteric. M is potassium, very reactive. And take option D. Option D. All right, 35D. All right. Okay. Next question. Question number 36. Correct sequence of following events which occurs during photosynthesis is. Okay. Okay, ये बच्चे क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है. इसमें सीक्वेंस का ऑप्शन नहीं है मेरे पास कोई. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स व्हिच अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ऑल राइट बच्चे, इसमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. N can be Ca also. सिमरन, N can be Ca. पर बच्चे अभी वो ऑप्शन तो दिया ही नहीं है. बच्चे कैल्शियम पानी के साथ रिएक्ट करता तो है. उसमें लिखा है N does not react with water at all. How N can be calcium? N कैसे कैल्शियम हो सकता है बच्चे? वो तो पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है. अनिरुद्ध, how N can be calcium? Calcium reacts with water. लेड, कॉपर, सिल्वर, इनका पानी के साथ रिएक्शन नहीं है. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 36 में बच्चे सीक्वेंस बताना है पर इसमें ऑप्शन मिसिंग है. तो इसमें पहला जो करेक्ट ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी. फर्स्ट सबसे पहले होगा. कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन सेकंड. रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बन. ओके, तो बच्चे यही करेक्ट सीक्वेंस है 1 2 3. पर इसमें ऑप्शन नहीं दिया कोड के साथ. आई थिंक इसमें ऑप्शन मिसिंग है. तो बच्चे दिस इज व्हाट इट इज सेइंग ना, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल. गर्म पानी के साथ तो रिएक्ट कर रहा है ना. ठंडे के साथ करे, गर्म के साथ करे, स्टीम के साथ करे, रिएक्ट तो कर रहा है. रिएक्ट नहीं करेगा. सिल्वर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा पानी के किसी भी स्टेट में. ठीक है ना. चलो, क्वेश्चन नंबर 37. इफ ट्रिप्सिन इज लैकिंग इन पैंक्रियाटिक जूसेस, which of the following events in the small intestine will not take place correctly? बच्चे, अगर ट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक जूस में नहीं है तो इनमें से कौन सा इवेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में सही तरीके से नहीं होगा? बच्चे, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स नहीं होगा. देखो, अगर बच्चे ट्रिप्सिन नहीं है तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा. तो विल पिक ऑप्शन सी. Question number 38.
आइडेंटिफाई द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस इन द गिवन लिस्ट। तो बचे ए ऑप्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ CO2, सॉरी ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। बचे ये फोटोसिंथेसिस में नहीं होता, रिडक्शन होती है CO2 की कार्बोहाइड्रेट में, पर कार्बन ऑक्सीडाइज नहीं होता। दिस डज 9 object is placed 25 centimeter in front of concave lens of focal length 25 centimeter. Find position and location and nature of image. Okay, concave lens focal length पे placed है object. What do you think? Where will the image be formed? Image कहाँ form होगी बच्चे? Concave lens है, तो बच्चे अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो बच्चे फोकल लेंथ क्या है इसमें? कॉन्केव लेंस माइनस 1/25, v फाइंड करना है माइनस, और u की वैल्यू क्या है? माइनस ही होगी, तो इट विल बिकम प्लस 1/25। तो बच्चे इसको सॉल्व करके देखिए v की वैल्यू क्या आती है। 1/v is equal to minus 1/25 minus 1/25। तो बच्चे इसका आंसर क्या होगा? v की वैल्यू क्या आएगी? 25। ओके, इट वुड बी -2, तो -12.5। व्हाट डू यू थिंक? इट शुड बी -12.5। 39D। बच्चे 39 का आंसर बताइए, पहले आगे मत जाइए। D। ओके, देन बचे क्वेश्चन नंबर 40। बचे क्वेश्चन नंबर 40 में दो लेंसेज हैं जिनको आप एक साथ रखा हुआ है, आपने कॉम्बिनेशन का पावर बताना है आपको। 8D माइनस 10D इनको आपने एक साथ रखा है। What would be power of the combination? Minus 10D plus 8D. It would be minus 2D. 40C. Then question number 41. Which of the following are protein digesting enzymes? बच्चे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम बताने हैं, तो इसका आंसर है 41D, ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 42. If Henle's loop were absent from mammalian nephron, which of the following is to be expected? बच्चे अगर Henle's loop मिसिंग है नेफ्रॉन से, तो इसमें से कौन सी चीज होगी? The urine will be more diluted, क्योंकि बच्चे जो रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो ट्यूबुलर पार्ट Henle's loop में होता है। अगर वो मिस हो जाएगा तो यूरिन विल बी मोर डाइल्यूट, बहुत ज्यादा पानी जो है यूरिन में बाहर जाएगा, एक्सक्रीट होगा। सो विल पिक ऑप्शन डी, 42D। इज इट क्लियर? व्हाट इज हेनलीज लूप? बच्चे अगर आप नेफ्रॉन का डायग्राम देखो तो उसमें एक ऐसे यू शेप ट्यूब बनता है, दैट इज नोन एज लूप ऑफ हेनले। एनसीईआरटी बुक में इसकी लेबलिंग नहीं है, तो इसको ट्यूबुलर पार्ट भी कह देते हैं। तो अगर लूप ऑफ हेनली मिसिंग है या ट्यूबुलर पार्ट मिसिंग है, तो यूरिन विल बी मोर डाइल्यूट, more water will be lost. All right, Anirudh, clear? The U-shaped tube जो बनती है, I agree this is not given in the NCERT book. तो आपको अगर ये बोर्ड में आएगा क्वेश्चन तो इसको लिखा होगा ट्यूबुलर पार्ट। If this is missing, urine will be more dilute because selective reabsorption occurs here. चलो, question number 43. The refractive index of dense flint glass and for alcohol are 1.65 and 1.36 respectively. The refractive index of dense flint glass with respect to alcohol लिखते हैं, refractive index of glass with respect to alcohol, it would be equal to refractive index of absolute refractive index of glass over refractive index of alcohol.
तो इसका आंसर क्या आएगा, वैल्यू निकालिए। 1.65 ओवर 1.36, डिवाइड 1.65 बाय 1.36, वन 1.21 आ रहा है, श्योर, ओके। 43B आ रहा है सबका, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग, इज इट 1.21? चलो वेरी गुड, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 44, इट इज अगेन बेस्ड ऑन अ बच्चे लेंस और अ मिरर। स्टेट द टाइप ऑफ लेंस L एंड वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज O। बच्चे यहां अगर आप ध्यान से देखो, यहां एक वर्चुअल इमेज बन रही है, यू गेटिंग अ वर्चुअल इमेज। तो कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस, एंड इमेज इज वर्चुअल। बच्चे ये रे डायग्राम सही है, व्हाट डू यू थिंक, इज इट करेक्ट? मुझे तो रे डायग्राम गलत लग रहा है। इट्स रॉन्ग, आपकी वर्चुअल इमेज यहां नहीं बननी चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? ये रे डायग्राम गलत है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 44 इज रॉन्ग, ठीक है ना। वैसे तो इसका ऑप्शन ए आना चाहिए, पर गलत रे डायग्राम है, ये चीज गलत है, इट शुड हैव बीन हियर समवेयर। ओके, रे डायग्राम इज करेक्ट देवादत्तन। but Devadatthan, it is talking about a lens. I'm not talking about a mirror, talking about a lens. अगर यहां मिरर होता तब ठीक हो जाता। ऑल राइट, बस इस क्वेश्चन में क्या करना है, लेंस की जगह मिरर आ जाएगा, लिखा हुआ है ना बच्चे, मिरर नहीं लिखा। अगर ये मिरर होता देन इट वुड हैव बीन करेक्ट, बट दे आर राइटिंग इट एज लेंस, यही गलत है इसमें, राइट देवादत्तन, इज इट क्लियर? लेंस लिखा हुआ है ना, इट इज नॉट मिरर, अगर मिरर होता तो सही हो जाता, ये लेंस लिखा हुआ है। चलो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन बच्चे, इस क्वेश्चन में रे डायग्राम ही गलत है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45, object is situated at distance of f by 2 from a convex lens of focal length f, distance of image would be, okay बच्चे इसमें फोकल लेंथ दिया हुआ है f एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है f by 2, यू हैव टू कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस, कर सकते हो? बताओ इसका आंसर क्या आएगा, कैलकुलेट। 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, सो बच्चे 1 by f, v की वैल्यू निकालनी है, एंड बच्चे u वुड बी माइनस प्लस प्लस 1 by f, ओके सो 2 by f, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, सो 1 by v is equal to 1 by f minus 2 by f, what would be the value, बताइए क्या निकलना चाहिए? बच्चे यहाँ जो एलसीएम आ जाएगा f आ जाएगा, सो v वुड बी इक्वल टू f एंड इट वुड बी इक्वल टू 1 minus 2 minus 1 माइनस f आ रहा है, डी ऑप्शन नहीं आ रहा, क्या आना चाहिए? डी ऑप्शन माइनस f, ऑल राइट चलो
ओके, क्वेश्चन नंबर 46, at what distance an object should be placed in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter to get an erect image? बच्चे फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर का 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि आपको इरेक्ट इमेज मिलेगी? बच्चे आपको फोकल लेंथ जो दिया है उसके बीच में रखना है, तो आई विल पिक ऑप्शन ए, तभी वर्चुअल इमेज मिल सकती है। 46A, इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना, रे डायग्राम के नॉलेज से ही आंसर देना है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 47, अ लाइट रे इज इन at an angle of 60 degree. The angle between the ray coming out of slab and normal to the face of rectangular slab from where it comes out is. बच्चे इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे का एंगल सेम होना चाहिए, दे हैव टू बी पैरेलल, तो विल पिक ऑप्शन बी। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे दे आर पैरेलल टू ईच अदर, सो एंगल शुड बी सेम, बी ऑप्शन। क्लियर? बताइए। 47B। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a jewelry making unit tested few elements on basis of their physical properties. तो बच्चे यहां आपको ज्वेलरी यूनिट के हिसाब से सोच के प्रॉपर्टी को देखना है। Which of the above elements were discarded for usage by company? बच्चे कंपनी किस मेटल को डिस्कार्ड कर देगी? ज्वेलरी के हिसाब से सोचिए। तो बच्चे लस्टर तो चाहिए, लस्टर चाहिए, डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी भी चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो ए तो रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे, सी को भी नहीं रखेंगे, डी को भी नहीं रखेंगे, तो बच्चे बी को, बी सी डी को डिस्कार्ड। ऑलराइट, ये तो बहुत इजी है बच्चे, डक्टिलिटी भी चाहिए, मैलेबिलिटी भी चाहिए, लस्टर भी चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई चाहिए, तो पिक ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया जाएगा, बीसीडी को डिस्कार्ड। चलो केस स्टडी क्वेश्चंस। ऑलराइट बच्चे, इन दिस क्वेश्चन यू हैव सैंपल ऑफ एसिटिक एसिड टेकन इन क्लीन टेस्ट ट्यूब, ब्लू लिटमस पेपर को उसमें डिप किया गया, दिस विल टर्न रेड। अनदर टेस्ट ट्यूब, एसिटिक एसिड को NaHCO3 में डाला गया, तो बच्चे इसमें बनेगा H2O plus CO2। ऑल राइट, चलो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ एसिटिक एसिड? तो बच्चे एसिटिक एसिड विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, तो विल पिक ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, द कलर ऑफ एसिटिक एसिड टेकन इन टेस्ट ट्यूब इज, बच्चे odor of acetic acid. Acetic acid is vinegar, तो बच्चे it has a pungent smell होती है, strong smell, तो 50C। Question number 51, complete the reaction involved in second experiment। बच्चे यहां क्या बनेगा? You will get CH3COONA plus water plus CO2, तो करेक्ट आंसर इज बी, सोडियम एसिटेट प्लस वाटर प्लस CO2। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेस ऑफ इवॉल्व्ड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर इन एक्सपेरिमेंट 2? बच्चे अगर मैं CO2 गैस को लाइम वाटर में डालता हूं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, पर अगर आप लगातार क्लियर, द सोल्यूशन अगेन बिकम्स क्लियर, तो बच्चे आई विल पिक ऑप्शन सी। यू हैव टू रिमेंबर, इनिशियली इट विल बिकम मिल्की, पर बाद में वो क्लियर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे बेस्ड है बच्चे। द गिवन डायग्राम शोज अ किडनी एंड इट्स एसोसिएटेड वेसल्स, विच स्ट्रक्चर हैज मोस्ट एंड लीस्ट यूरिया कंसेंट्रेशन? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। बच्चे आपको ये बताना है किसके अंदर सबसे ज्यादा यूरिया होगा और किसमें सबसे कम होगा, तो बच्चे यू हैव टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ
बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। डी क्यों बच्चे? दिस इज यूरेटर। तो यूरेटर के अंदर यूरिन होता है, तो यूरिन हैज कंसंट्रेटेड यूरिया। एंड नंबर थ्री इज ब्लड बाहर जा रहा है, दिस इज रेनल वेन। तो बच्चे रेनल वेन में ब्लड फिल्टर होके बाहर आता है, तो उसमें यूरिया सबसे कम होगा। तो 53 डी, 53 डी। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यूरेटर के अंदर यूरिन होता है बच्चे, सो इट विल हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया, एंड लीस्ट होगा रेनल वेन में, क्योंकि वहां ब्लड फिल्टर होके बाहर जा रहा है। तो 53 डी। बच्चे यू 5 एंड 1, यस। अगर बच्चे वहां 5 और 1 होता और 5 एंड 3 होगा, बच्चे 5 एंड 1 और 5 एंड 3, आप 5 एंड 3 ही पिक करोगे। अगर 5 एंड 3 नहीं दिया और 5 एंड 1 दिया है, फिर आप 5 और 1 पिक कर सकते हो। क्लियर? क्योंकि रेनल वेन बच्चे डायरेक्टली बाहर आ रही है ना। अगर 5 एंड 3 ऑप्शन नहीं है और 5 एंड 1 दिया है, then you are obviously you have to pick 5 and 1. All right, chalo, question number 54. Main function of ureter, very easy. It helps to transport urine from kidney to urinary bladder. बच्चे यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर्स इन, बच्चे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किधर होगी ब्लड की? It will occur in glomerulus. 55A. 56. If Henle's loop is absent in nephron. Okay, ये बच्चे क्वेश्चन दोबारा आ गया. Which one of the following is expected? The urine will be more dilute. 56C. All right. Question number 57. All right. This is based on mirrors. When he placed concave mirror in the experiment, the image formed of object placed at center of curvature. अगर आप बच्चे कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो, तो इमेज कैसी बनेगी? सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। 57D, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58. A convex mirror has wider field of view. Which of the following is correct about it? The image formed is much smaller than the object. बच्चे convex mirror अनेशा यही चीज समझनी है। अगर लूप ऑफ हेनली मिसिंग है, लूप ऑफ हेनली एब्सेंट हो गया, तो रीअब्सॉर्ब कैसे होगा? लूप ऑफ हेनली इज एब्सेंट, सो हाउ विल रीअब्सॉर्प्शन अकर? रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी ना। 56C, वाटर विल बी लॉस्ट। इज इट क्लियर? अगर बच्चे लूप ऑफ हेनली नहीं होगा तो पानी तो बाहर जाएगा ना, रीअब्सॉर्ब कैसे होगा? ऑल राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 59. A child is standing in front of a mirror, finds her head of same size, middle portion smaller, legs larger. Okay, तो देखो बच्चे head is same size, तो मतलब सबसे ऊपर प्लेन मिरर, मिडल पोर्शन स्मॉलर, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। ओके, ए ऑप्शन ही आएगा इसका। 59A। अनेशा लूप ऑफ हेनली है ही नहीं, लूप ऑफ हेनली है ही नहीं, तो रीअब्सॉर्प्शन कहां होगी पानी की? लूप ऑफ हेनली इज एब्सेंट। क्वेश्चन में बोला गया अगर लूप ऑफ हेनली एब्सेंट होगा तो क्या होगा? तो बच्चे पानी कहां रीअब्सॉर्ब होगा? इट विल बी डाइल्यूट। क्वेश्चन नंबर 60. टू गेट एन इमेज लार्जर, to get an image larger than that of object, one can use. बच्चे अगर लार्जर इमेज चाहिए तो आप क्या यूज करोगे? I will use a concave mirror but not a convex mirror, so B option, 60B.
कॉनकेव मिरर में बड़ी बन सकती है, कॉन्वेक्स मिरर में छोटी। सो बच्चे दिस इज इट। यहाँ ये सैंपल पेपर पूरा डिस्कस हो गया है बच्चे। आई विल बी शेयरिंग दिस सैंपल पेपर विद यू आल्सो so that you can go through it once again and revise it. ठीक है बच्चे? All right. अनिरुद्ध, आपने बच्चे मेरे साथ पेपर शेयर किया है? Have you shared your paper? All right. बच्चे मेरे साथ पेपर शेयर कर दीजिए तो कल हम उसको डिस्कस कर लेंगे। पर बच्चे उसका क्लियर स्कैन करके पीडीएफ बनाना, बिकॉज देन आई हैव टू डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। तो उसका अगर आप कोशिश करिएगा बिल्कुल क्लीन उसको सही तरीके से स्कैन करिएगा। तो विल डिस्कस इट टुमारो। ओके बच्चे, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग। टुमारो यू हैव मैथ्स क्लास एट 7 PM, राइट? टुमारो यू हैव मैथ्स क्लास एट 7 PM. All right. Okay, बच्चे, if can we start our class tomorrow at 6 PM? Can we have our class at 6 PM? Everybody, बताइए। Just for tomorrow. For tomorrow because Saturday है कल। So can we have our class tomorrow at 6 PM? उसके बाद हम कोशिश करेंगे क्लास को थोड़ा जल्दी खत्म करें। Then you can join the maths class. I'll try to start the class at 5:45 or 5:50. 5:45 or 5:50 I'll try to start the class, so then you can become free by 7 PM. Anirudh, it would be difficult for me to start at 5. I'm not free at that time. Otherwise, okay, there is no maths class tomorrow. Okay, sir is not taking classes. Okay, I was not aware about it. For class 10 there is no classes. मैथ्स की सर कभी क्लास नहीं ले रहे हैं। Okay, तो बच्चे then we can have our class at 6 PM tomorrow. All right. Tomorrow we'll have our class at 6 PM. Anirudh, you please share your question paper with me. और ये वाला पेपर बच्चे मैं शेयर कर देता हूं आपके साथ। चलो, see you all tomorrow. All right. जानवी, actually I was not aware कि सर की क्लास नहीं है इस वीक। मेरी सर से बात नहीं हो पाई। We were all very busy. All right. चलो ठीक है। Okay बच्चे, see you all tomorrow at 6 PM.